First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic heart. Before going to start, first revise our previous class content, what we have completed in previous, that is blood. Blood is a special type of connective tissue formed by formed element, and plasma. Plasma consists of water and 6 to 8% proteins. These proteins are fibrinogen, albumin and globulin. Fibrinogen help in clotting of blood and globulin help in immune response, and albumin help in osmotic balance. Then what are formed elements? There are three types of mainly formed elements. First is RBCs, WBCs, and third is platelets. RBCs, these are special type of cells which transport oxygen molecule and consist of hemoglobin. Actually, hemoglobin can bind with four molecule. One hemoglobin can bind with four molecule of oxygen molecule. Then WBC divided into or have uh, grouped into two parts, that is granulocytes and agranulocytes. Agranulocytes are basophils, eosinophils and neutrophils. Then granulocytes are macrophages or monocytes and lymphocytes. Lymphocytes are also two types on the basis of their maturation: T lymphocytes and B lymphocyte. T lymphocytes help in cell mediated immunity and B lymphocyte help in humoral immunity. Then platelets also known as thrombocytes and help in blood clotting. जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो मेनली थे प्लाज्मा में, वो एक्चुअली इसी प्लेटलेट से रिलीज हो रहे थे. दे आर फॉर्म बाय मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो. Then come to blood group. There are mainly two types of blood group, that is ABO grouping, and second is Rh factor, another type of antigen present in membrane of present on membrane of RBCs. Then इसके बाद हार्ट लिम्फ. देन हार्ट में जो हमने डिस्कस कर लिया था वो था कि प्रिमिटिव जो इन वर्टिब्रेट्स होते हैं वहाँ पे कोई स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन नहीं प्रेजेंट होता है, और ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है. फॉर एग्जांपल मोलस्क एंड ऑर्थ्रोपोड में ओपन टाइप, जिसमें कि हार्ट पंप करते हैं लार्ज वेसल, एंड लार्ज वेसल ओपन इनटू फ्री स्पेस और बॉडी कैविटी, तो वहाँ पे ब्लड ओपन हो जाते हैं, जिस वजह से ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम व्हेन हार्ट पंप ब्लड इनटू द वेसल्स, एंड दिस इज नोन एज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. और इन वेसल्स में ही ब्लड सर्कुलेशन होता है ना. जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, ये एक एक्सेप्शन है इन वर्टिब्रेट में, दैट इज एनिलिड्स. एनिलिड्स में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है. देन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं यहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, जिसमें हार्ट पंप करेंगे ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स. देन हार्ट इन फिशेस हार्ट इज टू चैम्बर, ऑल्सो नोन एज सिंगल टाइप ऑफ blood circulation or venous blood circulation. Venous blood, because actually why it is a single type of, क्योंकि सिर्फ एक बार ब्लड हार्ट में आता है, इसलिए सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन. और वीनस ब्लड इम्प्योर ब्लड होते हैं, इसलिए वीनस ब्लड. देन amphibia has three chambered heart, and reptiles are incomplete four chambered heart, except crocodile has complete four chambered heart. Then aves and mammal. Heart of aves and mammal. यहाँ पे भी हार्ट फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा, एंड कंसिस्ट ऑफ टू ऑरिकल और टू वेंट्रिकल. ब्लड सर्कुलेशन इज डबल टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. तो फोर चैम्बर्स
four chambers and double circulation, double circulation or consist of two auricle, two auricle and two ventricle, टू वेंट्रिकल, दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल होंगे यहाँ पे हार्ट में। देन टू ऑरिकल टू वेंट्रिकल और यहाँ पे जो ब्लड होगा वो प्योर टाइप का ब्लड होगा। तो सबसे तो मैमल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और हार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन मैमल। हार्ट फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं जिसमें दो ऑरिकल और टू वेंट्रिकल। जो राइट पार्ट होगा डबल सर्कुलेशन है क्यों है? क्योंकि राइट पार्ट में इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होंगे। देन लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो टू ऑरिकल and two ventricle, formed by two or covered by two membrane, outer membrane known as pericardium, known as pericardium। पेरिकार्डियम 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 देन पेरिकार्डियम यहाँ पे जो ये दोनों पार्ट होंगे जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों डिवाइडेड होंगे बाय सेप्टम नोन एज interauricular septum which is present in between auricle and interventricular system septum which is present in between ventricle।
दिस इज इंटरऑरिकुलर septum. Intercooler septum. This is interventricular septum. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम से जितना भी प्योर पार्ट और इम्प्योर पार्ट या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सभी सेपरेट रहेंगे इसी सेप्टम के थ्रू। तो इसलिए इस वजह से यहाँ पे जो इनकम्प्लीट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी या इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट 3 चैम्बर्ड हार्ट में कैसे हो रहा था ये, या 4 चैम्बर्ड हार्ट में कैसे हो रहा था, यहाँ पे इनकम्प्लीटली मतलब कि यहाँ पे पूरा सेप्टम प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से प्योर की इम्प्योर के साथ मिक्सिंग हो जा रहा था। तो इस वजह से जो ब्लड था वो वीनस ब्लड था, लेकिन यहाँ पे प्योर टाइप ऑफ ब्लड होगा। तो ये इंटर और इसके ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट होंगे, इन्हें बोला जाएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे वॉल्व प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वॉल्व के हेल्प से ही जो ऑर्कल में ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ पाएंगे। और ये वॉल्व अगर जो यहाँ पे राइट साइड, राइट एंड लेफ्ट जो लेफ्ट साइड में जो प्योर ब्लड रिसीव करेंगे, यहाँ पे वॉल्व कौन से प्रेजेंट होंगे, बाइकस्पिड वॉल्व, एंड हियर इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। Tricuspid valve. Now auricle consists of assay node and AV node. From assay node some neural या nerve arises, and जहाँ पे कुछ ऐसे नोड से नर्व अराइज होते हैं और एवी नोड तक कनेक्ट हो जाते हैं। एवी नोड से फिर नर्व या न्यूरल सिस्टम अराइज होगा, यहाँ से एवी नोड से न्यूरल सिस्टम फिर से अराइज होंगे और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए जिस यहाँ पे इन्हें बोला जाएगा बंडल ऑफ हिस, देन इमीडिएटली डिवाइड होके दोनों साइड ऑरिकल में और दोनों साइड वेंट्रिकल में ये जाएंगे और यहाँ पे इन्हें क्या परकिंजे फाइबर, इन्हीं न्यूरल सिस्टम को परकिंजे फाइबर बोला जाएगा। तो ऐसे नोड क्या करते हैं और एवी नोड ये ऐसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, यहाँ पे हार्ट कॉन्ट्रिक्शन को ये के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रिक्ट और रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से जो पंप होगा ब्लड का वो इसी वजह से होता है कि ऑरिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और देन रिलैक्स होंगे। इस वजह से जो ये प्रॉपर हार्ट के जो मसल्स होंगे या कार्डियक मसल स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, यहाँ पे
तो ये पंप करने के लिए, ब्लड पंप करने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहाँ पे ऐसे नोड और एवी नोड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ऐसे नोड या साइनोएट्रियल नोड इन्हें बोला जाता है। साइनोएट्रियल नोड क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। देन जनरेट करने के बाद ये ट्रांसफर होंगे ऐसे नोड से एवी नोड में, एंड एवी नोड से फिर से न्यूरल सिस्टम अराइज होगा और एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे भी जनरेट होगा। ये न्यूरल सिस्टम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए इमीडिएटली, जहाँ पे जैसे ही ये इमीडिएटली यहाँ पे दो में डिवाइड हो जाएंगे, दो न्यूरल सिस्टम में डिवाइड हो जाएंगे और इससे माइन्यूट फाइबर अराइज होंगे जो हर एक कार्डियक मसल्स में से अटैच होते हैं। यहाँ पे डिवाइड होने के बाद जब डिवाइड हो जाएंगे इन्हें पर्किंजे फाइबर बोला जाएगा, और ये हार्ट मसल या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो ऐसे नोड की वजह से और एवी नोड, क्योंकि ऐसे नोड से ये इम्पल्स जनरेट होंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ऐसे नोड। सिनोएट्रियल नोड, सिनोएट्रियल नोड and AV node is atrioventricular node। atrioventricular node तो AV node, here is it is bundle of his then bundle of his again divided into Purkinje fiber। पर्किंजे फाइबर। देन यहाँ पे वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे, वेसल्स ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, जहाँ से यहाँ पे चाहे राइट पार्ट हो और लेफ्ट पार्ट में ब्लड एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर राइट पार्ट ऑफ ब्लड, क्योंकि इम्प्योर साइड है यहाँ पे, इम्प्योर ब्लड ड्रेन होगा, तो पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, और देन ये इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ब्लड का ऑक्सीजन बाइंड करेंगे यहाँ पे, तो ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, इसके लिए भी वॉल्व प्रेजेंट होंगे, वॉल्व या वेसल्स प्रेजेंट होंगे, जो वेसल्स हार्ट से लंग में जाएंगे, तो इन्हें बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज जो पल्मोनरी दैट मीन्स कि लंग्स में, और लंग्स में जाते हैं इस वजह से, और इम्प्योर ब्लड रहता है तो अपोजिट हो जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज नोन एज पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहाँ पे राइट साइड में भी वेसल होंगे, लोअर पूरी जितना भी लोअर बॉडी पार्ट होगा उसके थ्रू ब्लड आएंगे यहाँ पे, तो ये इंफीरियर साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसे इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से जितने भी जो इम्प्योर ब्लड होगा वो पूरा यहाँ पे ड्रेन कर दिया जाएगा, और ये दोनों ही इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा ओपन होंगे इन ऑरिकल, राइट ऑरिकल में ओपन होंगे। देन राइट ऑरिकल से
या राइट ऑरिकल से ये ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन वेंट्रिकल वॉल्व के थ्रू। यहाँ पे वॉल्व से कॉर्डी टेंडिनी अटैच होते हैं, कॉर्डी टेंडिनी अटैच होंगे जो अटैच फाइनली होंगे ये वेंट्रिकल के वॉल से। अब जैसे ये रिलैक्स होता है, जैसे ये रिलैक्स होता है वैसे ये नीचे के रिलैक्स, दैट मीन्स कि नीचे की साइड शिफ्ट होंगे और यहाँ पे ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे। देन ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अब जब वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड लंग में भेजा जाएगा तो यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होंगे और वेसल्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ से ये लंग्स में जाएंगे। इन्हें बोला जाएगा, अगर लंग्स में जा रहे हैं दैट मीन्स कि पल्मोनरी आर्टरीज और इम्प्योर ब्लड होगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी के से ये इम्प्योर ब्लड लंग में जाएंगे और वहां से प्योर होके या ऑक्सीडाइज्ड होके फिर से इसको फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करेंगे, पल्मोनरी वेन के थ्रू। देन पल्मोनरी वेन के थ्रू जब एंटर कर जाएंगे तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करने के बाद ऑरिकल से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल फिर अगेन यहाँ पे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू अरोटा, डॉर्सल अरोटा, डॉर्सल अरोटा के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। और जो अब ये जब ट्रांसपोर्ट हो जाए, जो डॉर्सल अरोटा है, जब यहाँ पे ब्लड फ्लो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड, ये कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वेसल्स होंगे वहाँ पे वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं जिससे कि बैक फ्लो को रोका जा सके। और पूरे हार्ट में जितने भी वेसल्स होंगे यहाँ पे वॉल्व जो प्रेजेंट होगा वो सिर्फ सिंगल साइडेड ब्लड फ्लो करता है, सिर्फ एक साइड ब्लड फ्लो करेगा, रिपीट मतलब बैक फ्लो नहीं होता है कहीं भी, पूरे हार्ट में ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट होंगे वो सेमी ल्यूनर वॉल्व होंगे इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में जो वॉल्व प्रेजेंट होंगे सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होंगे। यहाँ से सेमी ल्यूनर वॉल्व जब ओपन होंगे तो दोनों ही हार्ट सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से ऑरिकल में ब्लड फ्लो हो जाएगा, ब्लड को ड्रेन कर दिया जाएगा और यहाँ से फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में अगेन वेसल्स के वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे अगेन सेमी ल्यूनर वॉल्व जो ओपन होगा और ब्लड यहाँ से सीधे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। लंग्स में प्योर होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से देन वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से ब्लड फिर से वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड
ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसे डॉर्सल अरोटा के थ्रू ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब ये डॉर्सल अरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरी बॉडी में जाएंगे तब इन्हें बोला जाएगा सिस्टमैटिक या सिस्टमिक अरोटा। सिस्टमिक अरोटा सिस्टमिक अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वॉल्व प्रेजेंट, कौन कौन से वॉल्व मेनली प्रेजेंट होंगे, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होंगे। कहाँ कहाँ पे, सबसे पहले इंफीरियर वेना केवा में और सुपीरियर वेना केवा में, दोनों में वॉल्व प्रेजेंट होंगे और ये दोनों ही ओपन होंगे इन ऑरिकल। यहाँ पे ऑरिकल में ओपन होंगे, वो भी राइट साइड के ऑरिकल में, राइट साइड के ऑरिकल से फिर ट्रांसपोर्ट होंगे इन राइट वेंट्रिकल से ट्रांसपोर्ट अगेन यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होगा। सेमी ल्यूनर वॉल्व जब ओपन होंगे यहाँ पे फिर इन्हें ये जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इन लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के बाद लंग में, अब वहाँ पे लंग में ये ऑक्सीजन बाइंड कर जाएंगे आरबीसी से, जिसे बोला जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गए हैं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन ट्रांसपोर्ट इन और लेफ्ट ऑरिकल से देन लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे डॉर्सल अरोटा निकले रहेंगे। अगेन सेमी ल्यूनर वॉल्व से फिर यहाँ से डॉर्सल अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर और ऐसे और एवी नोड ये क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, साथ में ट्रांसफर करेंगे। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कौन करेगा, ऐसे नोड सिर्फ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, इस वजह से इन्हें बोला जाता है पेस मेकर, ऑल्सो नोन एज पेस मेकर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये यही ऐसे नोड जनरेट कर रहे हैं। एक्शन पोटेंशियल ऐसा नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग वर्क करना होता है, तो इसलिए खुद इसके पास ऐसा मेथड होता है कि ये खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। देन यहाँ पे एवी नोड सिंपल बस एवी नोड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यही एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करेंगे। फिर ट्रांसफर करने के बाद ये फिर से न्यूरल सिस्टम में डिवाइड हो जाएंगे, न्यूरल फाइबर्स में, जिन्हें बंडल ऑफ हिस बोला जाएगा, बंडल ऑफ हिस। और फिर से बंडल ऑफ हिस अगेन इमीडिएटली डिवाइड कर जाएंगे, जैसे ये सेप्टम से बाहर निकलेंगे वैसे ही ये टू पार्ट में डिवाइड कर जाएंगे। और पेरिकार्डियम में ये फिर माइन्यूट फाइबर्स में रिलीज होंगे या रिलीज करेंगे माइन्यूट फाइबर, और ये माइन्यूट फाइबर अटैच होंगे कार्डियक मसल्स से। कार्डियक मसल्स देन कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, और इन फाइबर्स को क्या बोला जाता है, परकिंजे फाइबर्स, जो इमीडिएटली डिवाइड कर रहे हैं परकिंजे फाइबर्स, और ये पूरे मसल्स से कंट्रोल रहते हैं ना। जो आउटर कवरिंग होगी उसे पेरिकार्डियम बोला जाएगा, पेरिकार्डियम नोन एज पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम में जो वेसल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें बोला जाएगा पेरिकार्डियल आर्टरीज। देन यहाँ पे जो पूरे हार्ट में वेसल्स प्रेजेंट होंगे, पूरे हार्ट में वेसल्स, दैट मीन्स कि हार्ट को भी ब्लड चाहिए होगा, और वो ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, इन्हीं वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। देन यहाँ पे भी बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट होंगे, और कार्डियक मसल्स, ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होंगे जो ट्रांसपोर्ट करते होंगे ब्लड, जो स्पेशल टाइप ऑफ मसल जो मेनली क्योंकि हार्ट को पूरे लाइफ लॉन्ग वर्क करना है, तो ये स्पेशलाइज्ड मसल होते हैं। और ब्रांच्ड मसल्स स्केलेटल मसल होंगे, लेकिन स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, दैट मीन्स कि वो उन्हें कंट्रोल, वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। लेकिन ये स्पेशल टाइप क्यों है, ये स्केलेटल मसल्स की तरह ही फाइब्रस दिखते हैं लेकिन ब्रांच होते हैं, और ये लाइफ हमारे
मतलब कि ये इनवॉलेंट्री होंगे, ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग या हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, इन्हें लाइफ लॉन्ग वर्क करना होता है, तो इसलिए स्पेशल टाइप ऑफ इन्हें अलग ही बोल दिया गया है कि ये कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स फॉर्म बाय, और वॉल्व्स कितनी प्रेजेंट हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होंगे ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट होंगे। आर्टरी ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड का मेनली ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब जितने भी वॉल्व सेमिल्यूनर वॉल्व होंगे ये वेसल्स में वॉल्व होते हैं, ये किसी सेप्टम पे नहीं होंगे, ये वेसल्स के अंदर वॉल्व जितने भी प्रेजेंट होते हैं उन्हें सेमिल्यूनर वॉल्व बोला जाता है। और जो दो वॉल्व प्रेजेंट है वो सेप्टम में प्रेजेंट है, वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड में प्रेजेंट होंगे या इंटर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होंगे, और बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड में आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होंगे। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कार्डियक साइकिल कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है और कैसे ब्लड आ रहा है कार्डियक साइकिल में, सिस्टोल और डायस्टोल में, मतलब दैट मीन्स की सिस्टोल दैट मीन्स की कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल दैट मीन्स की रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है हार्ट का, और कैसे पंप कर रहे हैं इन कार्डियक साइकिल इन नेक्स्ट क्लास।